Don't write your number in chat box. At any time, I check the attendance from the peoples which are joined to the meeting. So be present physically for both lectures. Okay. So today we will discuss about the cylindrical portion or semicircular. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So in this lecture, in the first lecture, we will discuss about the cylindrical portion, how to draw the cylindrical portion in a front view, top view, side view. For that purpose, start from the circle. First, we need to draw the circle which is visible in respective जो भी आपका व्यू है उसमें वो सर्कल दिखाई दे रहा है तो सर्कल पहले ड्रॉ करना है एंड हाउ टू convert this circle into the cylindric rectangular portion because already we discussed about the cylindrical which is in vertical position means which is in vertical position the axis of the cylinder is perpendicular to the HP. अगर आपने खड़ा किया है सिलेंडर को तो आपको जो इसका एक्सिस है this if we want to describe the position of the cylinder then the cylindrical axis of the cylinder is parallel to the HP. suppose यहाँ पे सिलेंडर है तो ये वर्टिकल सिलेंडर है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इसलिए उसका हम फिर से रिपीटेशन नहीं करेंगे एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज VP HP and profile plane. So if we want to describe the position of the cylinder then the axis of the cylinder is parallel to the VP as well as parallel to the profile plane but it perpendicular to the HP. ये जो axis है this axis is perpendicular to HP and if this X is the observer in which we are going to observe the cylinder then in front view and in side view we get the rectangular position and if we observe from the top side then the circular then we get the image or the view as a circle. तो टॉप व्यू में हमें सर्कल मिलेगा एंड अदर टू व्यूज में इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द लेफ्ट साइड और इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द राइट साइड सॉरी फ्रंट साइड देन इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ रेक्टेंगल. Okay, now we will discuss about the cylinder which is horizontal cylinder. Now in this case the position of the cylinder is axis is parallel to the HP and parallel to the profile plane but this axis is perpendicular to the VP. वो जो axis है axis is perpendicular to VP and this is the X direction in which observer is observed to the cylinder. So in this case in the front view so tell me the which images are obtained in the front view, top view and side view. Front view में circle. Sir, front view में circle. Back view में rectangle. टॉप व्यू में Rectangle. Rectangle. side view में Rectangle. Rectangle. okay. Then suppose the length of the cylinder is 90 millimeter and the radius of the cylinder is 20 millimeter. Then tell me the dimension of rectangle. 90 Length by is equal to 40. 90. 90 by 50. In both cases or in a single view, any one of the view? In both views. Both Original cases. plane Okay, and in both cases, the rectangle obtained and the dimension of the rectangle are 90 by 40 millimeter. 40. 40 means diameter. ये radius है तो ये diameter होगा. मतलब देखो ये यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ से जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन इज विजिबल टू दिस ऑब्जर्वर and if we consider the top view observer then from this point to this point so total जो ऊपर का surface है this surface is visible to the observer. तो ये आपका जो ऊपर का सेमी सर्कल है ये सेमी सर्कल जो है वो आपको टॉप व्यू में विजिबल होने वाला है. तो ये जो सेमी सर्कल है उसका अगर हम टॉप व्यू में ऑब्जर्व करेंगे तो क्या बनने वाली है एक लाइन बनने वाली है और वो लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी जहां से एंड स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है तो उसमें बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी
वो स्ट्रेट लाइन क्या आपकी डायमीटर है. सो ऑलवेज दिस कर्वेचर पोर्शन इज कन्वर्टेड इनटू द सॉरी सेमी सर्कुलर है तो कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रेट लाइन एंड डायमेंशन आर इक्वल टू द डायमीटर. इफ वी कंसीडर द सेमी सर्कुलर, बस इतना ही आपने कंसीडर किया. सेमी सर्कुलर ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं. पहले ये तो ये समझ में आएगा कि आपका रेक्टेंगल दिखने वाला. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस केस में? इस केस में हम स्टार्ट करेंगे कि जहां पे हमें वो सर्कल विजिबल है. कौन से व्यू में सर्कल है? तो फ्रंट व्यू में सर्कल है. तो हम फ्रंट व्यू में पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ द सर्कल इन अ फ्रंट व्यू and the diameter is given, sorry, radius is given 20 millimeter. So after drawing the circle, immediately draw the two center lines. Okay, immediately draw the two center lines. So one is the vertical center line and second one is the horizontal center line. Okay, compulsory ये दो center lines आपको draw करना है. Then next, now the extreme right point of this circle is the this intersection point. जो सबसे राइट वाला पॉइंट है सर्कल का, ये जो आपने व्यू ड्रॉ किया है इसका जो सबसे राइट वाला पॉइंट है वो आपका ये एक्सट्रीम पॉइंट है. ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है? रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है विच इज द वर्टिकल रेफरेंस लाइन. सो मेजर द 10 mm डिस्टेंस फ्रॉम दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड टू ड्रॉ द टॉप व्यू वी नीड टू ड्रॉ वन रेफरेंस लाइन बिटवीन द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू. तो यहाँ से जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है यहाँ से 10 mm डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करना है and draw the two reference lines. पहले ये दोनों reference line draw करना है. Okay, after that draw the projection line first. पहले projection lines पहले draw करना है. किसकी projection line? तो ये जो आपकी center lines है, this center lines, ये center line की projection line एक side view में जाएगी and vertical center line है उसकी projection line आएगी top view. These center lines of the circle are converted into the axis length of the cylinder in the other two views. ठीक है, ये जो हमने सेंटर लाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट की है तो ये जो सेंटर लाइन होगी ये आपकी कौन सी लाइन होगी? एक्सिस, सिलेंडर का ये एक्सिस होगा. सेम ये जो वर्टिकल और वो जो एक्सिस है वो साइड व्यू का एक्सिस है. एंड इफ वी ट्रांसफर दिस सेंटर लाइन इनटू द टॉप व्यू देन दिस लाइन एक्ट एज अ एक्सिस फॉर द टॉप व्यू रेक्टेंगल. जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे उसका जो सेंटर लाइन होगी वो हमारी ये लाइन होगी. ठीक है, तो पहले सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल की दो सेंटर लाइंस ड्रॉ करो और उसी सेंटर लाइन को अदर टू व्यूज में प्रोजेक्ट करना है आपको. पहले ये फर्स्ट काम रहेगा आपका सर्कल ड्रॉ करते समय, क्योंकि ये जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ दिस प्रोजेक्शन लाइन और द पोजीशन ऑफ दिस सेंटर सॉरी एक्सिस लाइन, दिस पोजीशन इनडायरेक्टली गिव्स अस हाउ टू ड्रॉ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है ये आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाती है. ठीक है, अब हम टॉप व्यू में देखने वाले तो टॉप व्यू में हमें ड्रॉ करना है तो पहले यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो, सॉरी प्रोजेक्शन लाइंस. ये प्रोजेक्शन लाइंस आपने ड्रॉ कर लिए क्योंकि ये ही दो पॉइंट्स रहेंगे जिससे हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन. ओके, अब हमें क्या करना है? बैक साइड की कौन सी लाइन पहले हमें विजिबल है वो हमें पहले लाइन ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे तो ये जो पूरा प्लेन है, पूरा प्लेन है, इसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है. तो लाइन कहाँ पे जनरेट होगी? ये जो सेमी सर्कल है इस सेमी सर्कल की यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट होगी. सेम वे जो बैक साइड का सेमी सर्कल है उसकी एक लाइन यहाँ पे जनरेट होने वाली है. तो वो जो लाइन बनेगी इस सेमी सर्कल की, वो लाइन आपकी क्या होगी? नियरर टू द रेफरेंस लाइन एंड पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन होगी. मतलब ये बैक साइड का जो सर्कुलर पोर्शन है वो पहले हमें ड्रॉ करना है. तो वो कहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे? नियरर टू द रेफरेंस लाइन एंड बैक पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन. तो यहाँ से हमें पहले 10 mm डिस्टेंस मार्क करके एक पॉइंट लेना है और यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ करना है. देन अब आपको पता है कि इसका रेक्टेंगल जनरेट होने वाला है. तो रेक्टेंगल की जो दो लाइंस है वो दो लाइंस क्या है? पैरेलल टू द एक्सिस है. उसका डायमेंशन क्या है? 90 mm है. तो ये जो दोनों लाइंस है पैरेलल टू द एक्सिस है बट परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन रहेगी. तो हमने ऑलरेडी ये प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ किए. तो हमें क्या करना है? यहाँ से 90 mm डिस्टेंस और यहाँ से 90 mm डिस्टेंस लेकर दो लाइंस ड्रॉ करना है जो साइड की लाइंस रहेगी रेक्टेंगल. ओके, एंड देन कंप्लीट द रेक्टेंगल. बाद में ये रेक्टेंगल आपको कंप्लीट करना है. ओके, अब यहाँ पे ये जो आपकी सेंटर लाइन है, एक्सिस लाइन है, वो एक्सिस लाइन को डार्क करो. सिर्फ इतना ही पोर्शन जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के थोड़े से आउटसाइड में आपको वो लाइन एक्सटेंड करना है और इसके बीच में उसको सेंटर लाइन करके चेन थीन लाइन करके आपको वो ड्रॉ करना है. आफ्टर दैट
टू ड्रॉ द साइड व्यू। अब आपको पता चला कि ये रेक्टेंगल इसमें ऐसे बन रहा है, देखो रेफरेंस लाइन से अवे फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ऐसा रेक्टेंगल आपका बन गया। अब आप क्या कर रहे हैं, साइड व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। तो साइड व्यू इसके ऊपर इमेज मिलने वाली है, और इमेज मिलने के बाद आप ये जो प्लेन है वो 90 डिग्री से राइट साइड में रोटेट करने वाले हैं। तो आपको रेक्टेंगल कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा वो रेक्टेंगल? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल होगा, करेक्ट। तो वो हॉरिजॉन्टल है, वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये जो आपकी एक्सिस लाइन है वो एक्सिस लाइन आपको आइडिया दे रहे हैं कि आपका रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस फ्रॉम द सर्कल एंड देन ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस फ्रॉम द टॉप व्यू। तो देखो ये जो प्रोजेक्शन लाइंस है इंटरसेक्ट होने के बाद आपको इनडायरेक्टली ये मिल रहा है स्पेस कि जहां पे हम ड्रॉ करने वाले साइड व्यू। तो ये होगा आपका रेक्टेंगल जो हम साइड व्यू में ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड देन ये जो आपकी सेंटर लाइन है उसको डार्क करना है, बस थोड़ी सी आउटसाइड में उसको एक्सटेंड करना है, ओके। इस तरह से हम इसके तीनों व्यूज ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए पहले सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल की दो सेंटर लाइन, एंड देन एक्सटेंड दिस सेंटर लाइन अदर इनटू द अदर टू व्यूज। So these center lines are converted into the axis of the cylinder, and this axis is gives us the idea कि इसको ही पैरेलल हमें जो लॉन्गर लाइन है वो लॉन्गर लाइन इसको पैरेलल ड्रॉ करना है। तो आपका रेक्टेंगल इस तरह से बनने वाला है, सेम यहाँ पे, ओके। देन अनदर वन केस हियर, now this cylinder is perpendicular to the axis of the cylinder is perpendicular to the profile plane and parallel to the axis, parallel to the VP and the HP। तो यहाँ पे ये इसका axis है, and this axis is perpendicular to the profile plane and parallel to the VP and parallel to the HP। तो in this case the circle is visible in a side view। side view में हमें circle दिखाई दे रहा है, और front view and the top view में हमें वो rectangle दिखाई दे रहा है। तो सर्कल हमारा साइड व्यू में, तो मुझे क्या करना होगा, पहले सर्कल साइड व्यू में ड्रॉ करना होगा, ओके। तो ये जो आपका साइड व्यू है यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे पहला। अब ये व्यू कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब वो हम फ्रंट व्यू के राइट में ड्रॉ करने वाले। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोल रहा हूँ तो मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा, एंड इसके नीचे टॉप व्यू आने वाला है, ओके। So after drawing the circle, immediately draw the two center lines and then draw the reference line। अब मुझे फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना है, मतलब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से 10 mm डिस्टेंस मेजर करके एक पॉइंट मार्क करना होगा, और जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है वो ड्रॉ करने के लिए यहाँ से 10 mm डिस्टेंस लेकर पॉइंट मार्क करना होगा। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एंड ये हो गई आपकी वर्टिकल रेफरेंस लाइन, ओके। सो आफ्टर ड्राइंग द सर्कल ये हमने काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ द प्रोजेक्शन फॉर दिस सेंटर लाइंस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है उसका प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया फ्रंट व्यू में। देन वी नीड टू ड्रॉ द 45 डिग्री लाइन, देन ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द वर्टिकल सेंटर लाइन एंड ट्रांसफर इनटू द टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हमने ड्रॉ किया। अब देखो ये दोनों एक्सिस क्या है, आपके दोनों एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, मतलब आपकी जो रेक्टेंगल बनेंगे वो रेक्टेंगल की जो 90 mm लाइन है वो 90 mm डिस्टेंस भी एक्सिस को ही पैरेलल होगा, ओके। सो फर्स्ट टू ड्रॉ द टॉप फ्रंट व्यू, ड्रॉ द प्रोजेक्शन फ्रॉम द सर्कल इनटू द फ्रंट व्यू, ओके। तो ये जो दो लाइन है इसके बीच में जो लाइन बनेगी वो लाइन क्या है, ये आपका कर्वेचर है, उसकी क्या बनने वाली है, एक लाइन बनने वाली है, ठीक है। उस लाइन का डायमेंशन कितना है, इक्वल टू द डायमीटर है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डायमीटर इतना गैप है दोनों लाइंस में, तो यहाँ से 10 mm डिस्टेंस लेना है आपको, पॉइंट मार्क करना है, और यहाँ पे जो बैक साइड है इस साइड की लाइन वो लाइन हमने पहले यहाँ पे ड्रॉ की क्योंकि ये लाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाली है। एंड देन टेक द 90 डिग्री डिस्टेंस, 90 mm डिस्टेंस
and complete the rectangle. और ये उसका axis. Then to complete the top view, draw the projection from the front view. Also हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं. जो हम पहले टॉप व्यू से हम साइड व्यू ड्रा करते तो जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे रिवर्स प्रोसेस है. तो देखो ये जो चार प्रोजेक्शन लाइंस है वो इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. ये चार पॉइंट्स है. ये चार पॉइंट्स आपको इनडायरेक्टली आइडिया दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल जो सिलेंडर का है वो टॉप व्यू में वो रेक्टेंगल इस चार कॉर्नर के बीच में बनने वाला. सर हमेशा सर्कल पहले ड्रॉ करना है. हाँ यस, सर्कल को पहले ड्रॉ करना है. तो वो कौन से व्यू में वो पहले देखना है. पहले सर्कल को ड्रॉ करना है, उसकी सेंटर लाइंस ड्रॉ करना है, सेंटर लाइन को अदर टू व्यूज में प्रोजेक्ट करना है और वहां पे उसका जो भी व्यू बनेगा वो व्यू आपको साइड अदर टू व्यूज में ड्रॉ करना है. ओके, तो ये हो गया सर्कुलर पोर्शन. अब सपोज सर हाँ यस, कौन सी लाइन डार्क निकलनी वो बताओ ना. मतलब लाइन इसमें क्या सर्कल हमने अभी तक देखा है ना. सिलेंडर जब हम वर्टिकल सिलेंडर देख रहे थे तो हमने क्या किया था, सिर्फ सर्कल को डार्क किया था एंड वो रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल को डार्क किया था. एंड सेंटर लाइन जो रहती है वो चेन लाइन, लेकिन वो मीडियम थिक होती है और बाकी सब सारी प्रोजेक्शन लाइंस है तो वो तो लाइट भी होनी चाहिए. ओके अब ये जो केस है इसमें क्या है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क दिया आपको. ठीक है, अब हम ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो मुझे अब बताओ, सपोज ये यहाँ पे ऐसे उसका सिमेट्रिक के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है. ठीक है, मतलब इस साइड में भी सेम है, इस साइड में भी सेम. ये सिमेट्रिक लाइन है और ये उसका सेंटर लाइन है. सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल हो, कंप्लीट सर्कल हो या क्वार्टर सर्कल हो, उसको दो सेंटर लाइन कंपलसरी दिखानी है आपको. ठीक है, दो सेंटर लाइन कंपलसरी होनी चाहिए. इन केस ऑफ द सेमी सर्कल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेंटर लाइन यहाँ पे आ रही थी उसके ऊपर ही उसकी बेस एज जो है वो बेस एज उसके ऊपर ही ओवरलैप हो रही है. तो हम प्रेफरेंस देंगे जो बेस एज विजिबल है उसको. तो हमें क्या करना होगा, जो एक्सिस है वो एक्सिस को सॉरी सेंटर लाइन उसको थोड़ा सा आउटसाइड में एक्सटेंड करना. तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका ये सेंटर लाइन सॉरी सर्कल की सेंटर लाइन है. अब मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या कौन से व्यू में कौन सा शेप दिखने वाला है. फ्रंट व्यू में सेमी सर्कल दिखेगा. सेमी सर्कल. ओके टॉप व्यू में रेक्टेंगल रेक्टेंगल. ओके एंड साइड व्यू में साइड व्यू में भी रेक्टेंगल. साइड व्यू में भी रेक्टेंगल. ओके, नाउ बोथ रेक्टेंगल आर सेम और डिफरेंट. 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 Okay. So tell me the dimensions of the rectangles. सर वो थोड़ा ब्लर हो रहा है. Okay, एक मिनट. टॉप व्यू वाले रेक्टेंगल की लेंथ डायमीटर होगी सर्कल सेमी सर्कल. डायमेंशंस बोलो ना, दोनों की डायमेंशंस कैसे हो गई. इसका सर रेक्टेंगल फ्रंट 60x30 टॉप व्यू की. हाँ, हाँ एंड इधर के लिए 30x30. 30 साइड व्यू तो ये अगर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है तो आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो अब मुझे ये फ्रंट व्यू में क्या दिखाई दे रहा है, सेमी सर्कल दिखा रहा है. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे वो सेमी सर्कल से स्टार्ट करेंगे. तो सपोज ये सेमी सर्कल है. आफ्टर ड्राइंग द सेमी सर्कल इमीडिएटली ड्रॉ द टू सेंटर लाइंस. दिस इज द वन सेंटर लाइन एंड हियर सेकंड सेंटर लाइन. लेकिन ये जो बेस एज है वो सेंटर लाइन नहीं है, तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस देंगे बेस एज को. तो साइड में उसको सिर्फ थोड़ा एक्सटेंड करना है. देन आफ्टर दैट ड्रॉ द रेफरेंस लाइन. ये बॉटम लाइन है, यहाँ से 10 mm डिस्टेंस पर एक रेफरेंस लाइन आएगी
एंड ये जो आपका सबसे राइट वाला पॉइंट है, यहाँ से 10 mm डिस्टेंस, वहाँ पे एक रेफरेंस लाइन। देन ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस टू ड्रॉ द टॉप व्यू। ओके, सो फर्स्ट एक्सटेंड ट्रांसफर दी सेंटर लाइंस इनटू द अदर टू व्यूज। अब ये वर्टिकल लाइन है वो हमारी जाएगी टॉप व्यू में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जाएगी साइड व्यू में। ओके, देन ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस। ये प्रोजेक्शन लाइंस आपने ड्रॉ किए। अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं पीछे, सॉरी ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू ड्रॉ करने वाले हैं तो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऊपर से ऑब्जर्व करते समय ये जो बैक साइड का कर्व है सर्कल का, दिस सर्कल का ये जो कर्व है, दिस कर्व इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रेट लाइन, ओके, इन द इमेज, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज नियरर टू द रेफरेंस लाइन एंड पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। तो हम बैक साइड की जो लाइन है, सॉरी कर्व है, उसकी एक स्ट्रेट लाइन पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से 10 mm डिस्टेंस पर पॉइंट, और वो उसका डायमेंशन कितना होगा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से एंड तक है, मतलब इक्वल टू द डायमीटर है, तो ये लाइन होगी। देन दिस लाइन 30 mm जो लाइन है इस साइड से और दूसरी साइड से एक होगी, सो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पे ये 30 mm, यहाँ पे ये 30 mm, एंड देन क्लोज दिस लाइंस। सो ऑटोमेटिकली आपको ये जो डायमेंशन है वो 60 mm मिलेगा, एंड ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन हमने तो ऑलरेडी मेजर करके ही लिया था, ये 30 mm डायमेंशन है। ओके, तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस रेक्टेंगल से आप कैसे समझ पाएंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर ही है या रेक्टेंगुलर। सपोज ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और एक, मतलब जो प्रिज्म लाइक अ प्रिज्म, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका टॉप व्यू भी क्या होने वाला है, रेक्टेंगल ही आने वाला है इसका टॉप व्यू, और ये जो सेमी सर्कल है उसका भी टॉप व्यू रेक्टेंगल ही आ रहा है। तो इसमें मुझे डिफरेंशिएट करना है, दोनों में डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल किसका है, सेमी सर्कल वाले का है, या जो प्रिज्म वाला है वो उसका रेक्टेंगल है। तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब ये तो हमने ऑलरेडी सेंटर लाइन को शिफ्ट किया था तो वो एक्सिस होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेंटर में उसके ये चेन थीन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो जो रेक्टेंगल था प्रीवियस वाला वो क्या होगा, इस क्यूब का, सॉरी ये जो प्रिज्म है इसका वो रेक्टेंगल है ऐसा कंसिडरेशन होगा। तो मैन्युफैक्चरर भी कंफ्यूज हो सकता है कि ये जो रेक्टेंगल आपने जो दिया है, अगर वहां पे बीच में सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन नहीं है, इसका मतलब ये आपका प्रिज्म है। एंड व्हेन वी ड्रॉ द सेंटर लाइन और द एक्सिस लाइन, देन इट इज कंसिडर्ड एज इट इज अ सर्कुलर पोर्शन। तो इसलिए हमें ये सेंटर लाइन, अगर सर्कल का रेक्टेंगल है तो सेंटर लाइन आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है। ओके, देन ड्रॉ द 45 डिग्री लाइन, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस, शिफ्ट दिस प्रोजेक्शन इनटू द साइड व्यू, एंड ये तो इसका प्रोजेक्शन आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, सिर्फ ये ऊपर वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो देखो, ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 4 लाइंस, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्क्वायर आपका बन चुका है। ओके, अब ये जो स्क्वायर है इसकी हाइट कितनी होगी, तो देखो आपको सिर्फ कितना पोर्शन दिखाई देने वाला है, आपको कितना पोर्शन दिखाई देगा, सिर्फ इतना ही पोर्शन। हाँ, और एक, अब आपने पहले कौन सा व्यू ड्रॉ किया था, ये वाला व्यू ड्रॉ किया था, करेक्ट, और मुझे अब ये व्यू ड्रॉ करना है। तो इन कंसिडरेशन ऑफ फ्रंट व्यू, जो मेरा ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, मैं इस व्यू को ऑब्जर्व करके ये व्यू बना रहा हूं, तो मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में। मुझे अगर ये साइड व्यू बनाना है इसको देखकर, तो मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड, कहाँ पे, फ्रंट पे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। यहाँ से वो देखेगा ना, इसको देखने के बाद मुझे सिर्फ ये सेमी सर्कल का इतना ही पोर्शन विजिबल हो रहा है। तो ये जो कर्वेचर है इसकी स्ट्रेट लाइन जो बनेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी उसका डायमेंशन कितना होगा, यहाँ से लेकर बॉटम तक, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो हाइट है वो हाइट यहाँ पे मेंटेन हो गई क्या, देखो यहाँ पे ये हाइट है। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, इसको देख रहा हूँ इसको, तो इमेज मुझे उसके अपोजिट में, ऑब्जर्वर के अपोजिट में इमेज मिल रही है। अब देखो ये जो ऑब्जर्वर है उसको कितना पोर्शन विजिबल हो रहा है, ये ऊपर का पूरा पोर्शन विजिबल हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक वो रेक्टेंगल की लेंथ रहेगी जो यहाँ पे आपने ऑलरेडी ड्रॉ की है, करेक्ट। तो आपको याद क्या रखना है, जैसे सेम इसमें ये सर फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू, मुझे अगर
फ्रंट व्यू को ऑब्जर्व करके साइड व्यू बनाना है, तो मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो ऑब्जर्वर को ये सेमी सर्कुलर पोर्शन जो सरफेस होगा, पीछे तो सिलेंडर है लेकिन इतना ही पोर्शन सिलेंडर का विजिबल होने वाला है, तो उतना ही रेक्टेंगल की हाइट यहाँ पे आपने ड्रॉ की है। सेम अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो मुझे ये पूरा सेमी सर्कुलर ऊपर का पोर्शन दिखने वाला है, तो उसके बीच में हमारी ये जो सिलेंडर की विड्थ होगी वो विड्थ हमें यहाँ पे मिलेगी। तो आपको याद क्या रखना है, अगर आप इसमें से किसी भी एक व्यू को ऑब्जर्व करके दूसरा व्यू बना रहे हैं तो उसके अपोजिट में आपका ऑब्जर्वर होना चाहिए। अगर मैंने इसको ऑब्जर्व करके मुझे ये बनाना है तो मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, इसको देखकर ये व्यू बनाना है तो मेरा ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करेगा। ओके, इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करने वाला है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ऑब्जर्वर एंड इमेज उसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सेमी सर्कल का देखो आपने इजीली हम की बता सकते कि कितनी हाइट होगी, बस इतना ही पोर्शन दिख रहा है तो ये आपकी हाइट होगी। ओके, तो ये वाली हाइट है। इस तरह से आपको सर्कल की केसेस सॉल्व करना है। और एक केस हम देखते हैं। सपोज अब सेमी सर्कल हम पे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे होगा आपका वर्टिकल प्लेन, ये प्रोफाइल प्लेन। ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे, तो ये 30 mm है एंड डायमीटर है 60 mm। ओके, ये आपका ऑब्जर्वर है। तो सेमी सर्कल कौन से व्यू में दिखाई दे रहा है पहले वो चेक करो। सेमी सर्कल विजिबल इन अ साइड व्यू, तो मुझे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करना है विच इज विजिबल इन अ साइड व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड व्यू में उसको ड्रॉ करते हैं। ये सेमी सर्कल साइड व्यू का। आफ्टर दैट इमीडिएटली ड्रॉ द टू सेंटर लाइंस, वन इज द वर्टिकल and second one is the horizontal. Okay, now we need to draw the reference lines. So अब हमारा ये जो व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, हमें ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू आएगा आपका यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से 10 mm डिस्टेंस पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है एंड बॉटम लाइन से एक नीचे 10 mm डिस्टेंस पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बनने वाला है, यहाँ पे हमारा टॉप व्यू आने वाला है। अब पहले क्या करना है कि जो रेफरेंस लाइन, सॉरी जो आपकी सेंटर लाइंस है उसको पहले रिस्पेक्टिव व्यूज में शिफ्ट करना है, फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में। तो ये हमारी सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल है, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं फ्रंट व्यू में, और जो वर्टिकल सेंटर लाइन है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं टॉप व्यू में। ये फ्रंट व्यू एंड ये टॉप व्यू। ठीक है, तो ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, इसको ऑब्जर्व करके, लेफ्ट हैंड साइड व्यू को ऑब्जर्व करके। तो मेरा जो ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा उसको, और बाद में आपका यहाँ पे बनने वाला है फ्रंट व्यू। ओके, तो हम पहले यहाँ से एक 10 mm का पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब देखो आपका फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख रहे हैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो इतना पोर्शन जो है सर्कल का, बस इतना ही पोर्शन आपको यहाँ से देखने के बाद दिखने वाला है। तो पहले ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइन, ये पोर्शन है ना, तो इसको मुझे प्रेजेंट करना है, तो उसकी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब यहाँ पे कितने कितने सर्कल फ्रंट व्यू में दिखाई देंगे, एक यहाँ से ये वाला और एक दूसरा ये वाला। तो हम पहले ये ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी इक्वल टू द रेडियस। हम रेडियस इतनी ड्रॉ करेंगे, उसकी थिकनेस है वो 30 mm एंड अगेन द लाइन इज इक्वल टू 30 mm।
अब ये सिर्फ आपका एक स्क्वायर बन गया, लेकिन ये स्क्वायर किसका है, क्यूब का बना हुआ है या सर्कल का बना, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे ये जो हमारी सेंटर लाइन है उसको यहाँ पे इसे ड्रॉ करना होगा, तो हमें समझ में आएगा कि ये ऊपर का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर किसका है, तो सेमी सर्कुलर एक कोई तो ऑब्जेक्ट है उसका ये स्क्वायर बन चुका है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ये वाला कंप्लीट करना है टॉप व्यू, तो इसकी प्रोजेक्शन लाइंस नीचे ले लो, देन ये जो पॉइंट्स है हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइंस के, उसके पॉइंट्स यहाँ पे शिफ्ट कर लो। अब देखो टॉप व्यू में आप देख रहे हो ऊपर से, तो आपको कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेमी सर्कुलर पोर्शन जो है वो सेमी सर्कुलर पोर्शन पूरा दिखाई देने वाला है, ये वाला पूरा। तो मतलब रेक्टेंगल उसका आपको यहाँ पे बनाना है, तो वो रेक्टेंगल देखो ये जो 4 प्रोजेक्शन लाइंस है 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 प्रोजेक्शन लाइन है वो आपको इनडायरेक्टली क्या देगी, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल कैसे बनने वाला है, क्योंकि ये तो आपकी सेंटर लाइन है, एक्सिस लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही है, और उसके साइड में ये आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो इस तरह से आपको पहले क्या करना है, जहाँ पे भी सर्कल है सेमी सर्कल है वो पहले ड्रॉ करना है, और बाद में जो आपकी सेंटर लाइंस है उसको पहले प्रोजेक्ट करना है, एंड देन कंप्लीट द रिस्पेक्टिव रेक्टेंगल्स। सर फ्रंट व्यू का एक बार बताओ ना। हाँ, फ्रंट व्यू देखो, हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करने वाले तो हम यहाँ से देखने वाले, तो इसका पोर्शन कितना दिखाई देगा, इतना ही पोर्शन दिखाई देगा ना, तो ये जो कर्वेचर पोर्शन है उसका कन्वर्जन रेडियस में हो जाएगा, ये जो रेडियस है वो, तो हाइट कितनी होगी रेक्टेंगल की, इक्वल टू रेडियस होगी। तो हमने ये प्रोजेक्शन लाइंस जो ड्रॉ किए, तो इस प्रोजेक्शन लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस आल्सो इक्वल टू द रेडियस। तो हमें क्या करना है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करना है जो बैक साइड के कर्वेचर की, और आगे वाली कर्वेचर की जो लाइन बनेगी उसमें डिस्टेंस कितना है 30 mm, तो मैंने यहाँ से 30 mm यहाँ से 30 mm लिया और सिर्फ उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये वर्टिकल लाइन मेरी यहाँ पे, और ये जो वर्टिकल लाइन है राइट साइड की वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे हमने वो रेक्टेंगल से सेंटर लाइन पास की, वैसे स्क्वायर से सिर्फ बॉटम से ही जाएगी, मतलब उसके बीच में से नहीं जाएगी? बीच में से कैसे जाएगी, फ्रंट व्यू। कैसे जाएगी, आपकी यहाँ पे सेंटर लाइन है क्या बीच में बीच में से पास होने वाली, अगर बीच में से हम पास करेंगे तो क्या होगा, सिलेंडर हो जाएगा, कंप्लीट सिलेंडर होगा ना। हमने जो सिलेंडर का हम जब ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से बीच में एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, तो ये पूरा सिलेंडर है। यस सर। अगर मैं यहाँ से बीच में से सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, ये जो मेरा स्क्वायर बन चुका है वो किसका है, सिलेंडर का बन चुका है, ऐसा हो जाएगा कंप्लीट सिलेंडर। अभी आपकी सेंटर लाइन कहाँ पे है, बॉटम में सेंटर लाइन है ना, तो उसी को ही यहाँ पे सेंटर लाइन करके, उसी जो प्रोजेक्शन लाइन है उसको सेंटर लाइन करके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके सर, गॉट इट। और कुछ इसमें डाउट, किसी को और कुछ डाउट्स है? तो हम ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम दिया है वो हमें सॉल्व करना है। तो x डायरेक्शन इज गिवन एंड दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो पहले हमें क्या करना है कि प्लेन्स, कौन सा प्लेन कौन से व्यू में विजिबल है वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको एक, हाँ पहले ये बताओ, ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये आप सेमी सर्कल है, ये जो x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में मुझे पूरा सेमी सर्कल दिखाई देगा या उसका भी हाफ क्वार्टर सर्कल दिखाई देगा, इन डायरेक्शन x क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल दिखाई दे रहा है, मतलब
यहाँ से इतना पोर्शन सर्कल का दिखाई दे रहा है, तो इसका भी रेक्टेंगल बनने वाला है। ओके, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज अब यहाँ पे आपको एक ही प्लेन है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ये एक पूरा कंटिन्यूअस प्लेन है, करेक्ट। बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस प्लेन ऑन द एक्सिस लाइन, और जो सिमेट्रिक लाइन है यहाँ पे ये आपका सेंटर लाइन है ना, अगर मैं यहाँ से उसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये आगे वाला हो गया क्वार्टर सर्कल, और इसके आगे जो पोर्शन है वो सब स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से आगे कर्वेचर है, ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है सेपरेटिंग लाइन, यहाँ से पूरा कर्वेचर है और बाकी सब यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है। तो इसको मैंने सिर्फ डिवाइड कर दिया फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एक्चुअल में यहाँ पे कोई सेपरेटिंग लाइन नहीं है, लेकिन ये एक्सिस लाइन है आपकी, जो सेंटर लाइन है उसको हम वर्टिकल करेंगे तो एक्सिस लाइन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम नंबर्स दे रहे हैं, ये 1 नंबर का प्लेन है सपोज, ये 2 3, यहाँ पे एक प्लेन होगा 4, देन ये ऊपर का पूरा प्लेन, ये सेमी सर्कल प्लस ये जो स्ट्रेट लाइन है वो प्लेन नंबर 5 है सपोज, और ये जो सिर्फ आपका जो सर्कुलर कर्वेचर पोर्शन है उसको हम 6 नंबर्स देंगे। और कहाँ पे एक प्लेन बाकी है या सब हो गए प्लेन्स? सर वो कर्व के उसके नीचे वाला, यहाँ पे एक प्लेन बाकी है 7 नंबर प्लेन। ओके, तो ये जो प्लेन है इसमें से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है विच प्लेन्स आर विजिबल फॉर द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को कौन से प्लेन विजिबल है? 1 and 6. 1 and 6। तो ठीक है, हम पहले 1 स्टार्ट करेंगे, आप भी स्टार्ट करना है, आपको भी स्टार्ट करना है साइमल्टेनियसली। ड्रॉ द 1 नंबर प्लेन एज पर द गिवन डायमेंशंस। तो पहले हम डायमेंशंस आइडेंटिफाई करते हैं, ये कितना है 42, तो ये लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका डायमेंशन कितना है दिया है क्या कहीं पे, या कहीं एडिशन करके हमें टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा? 15 plus 8. करेक्ट, यहाँ पे आपको 8, ये दोनों एक ही लाइन पर है, एक ही लेवल पर है, तो ये 8 प्लस 15 बेस से दिया है, मतलब इस लाइन से 15 प्लस 8 23 होगा। इसका डायमेंशन 10. 10 यहाँ पे दिया है। इसका डायमेंशन 15 क्योंकि आपने ये 23 फाइंड आउट किया था ना, माइनस ये 8 होगा, मतलब ये 15। इसका डायमेंशन 42 minus 20. करेक्ट, ये 10 है, टोटल 42 है, मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है, तो मैं ये 10 माइनस करूंगा और यहाँ पे ये जो 10 है ये 10 माइनस होगा तो 20 माइनस होगा तो ये 22 आएगा। उसके बाद इसका डायमेंशन 15 और ये सेंटर तक का स्ट्रेट लाइन का डायमेंशन 56 minus 42। 56 कहाँ से कहाँ पे? इस सेंटर लाइन, मतलब यहाँ से इस एंड तक का दिया है। देखो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से ये 56 है, तो मुझे कितना ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? ये 10 माइनस होगा प्लस ये हमने जो फाइंड आउट किया था 22, तो ये 22 प्लस ये 10 32 माइनस होगा आपका। ओके, समझ में आ गया 32 कैसे? हम यहाँ तक का आपको कि टोटल 56 दिया है, यहाँ से यहाँ तक, मुझे तो फिर इतना डिस्टेंस माइनस करना होगा, तो ये तो हमने 10 ऑलरेडी दिया है आपको, तो ये 10 है, और ये हमने फाइंड आउट किया था ना, कितना फाइंड आउट किया था? 42 माइनस 10 माइनस 10 तो 22, तो 22 प्लस 10 32 होगा, तो ये जो लाइन होगी वो आपकी 32 होगी। एंड ये इसका एंड पॉइंट और इस लाइन का एंड पॉइंट एक वर्टिकल लाइन के ऊपर आपके लोकेटेड होंगे। तो चलो स्टार्ट करो, 1 नंबर का प्लेन ड्रॉ करो, सब लोगों को करना है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको मैंने डायमेंशंस बता दिए, तो आपको ड्रॉ करना है। ये जो लाइंस है वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट पैरेलल एक दूसरे को आनी चाहिए।
तो ये सेंटर लाइन तक, ये जो हमने डिवाइडेशन लाइन में उसको सेंटर लाइन बोलेंगे, एक्सिस लाइन, तो वहां तक हमने ये प्लेन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे मुझे ये जो क्वार्टर सर्कल है उसका रेक्टेंगल बनाना है। उसका थिकनेस तो ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है यहाँ पे, सिर्फ हमें लेंथ कितनी आएगी वो फाइंड आउट करना है। अब लेंथ कितनी होगी, ये क्वार्टर सर्कल है मतलब सिर्फ रेडियस इतनी लेंथ आगे एक्सटेंड करनी होगी सेम लाइन पर। तो रेडियस है हमारी 15, तो ये 15 एंड ये भी 15, और यहाँ से क्लोज कर दो। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू बन गया है। ओके, देन टू ड्रॉ द टॉप व्यू हमें पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होगी, एंड यहाँ पे हम यहाँ से ऑब्जर्व करके व्यू बनाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड का है तो राइट में बनने वाला है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन, तो पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो ऑन द डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट साइड लाइन एंड फ्रॉम द बॉटम लाइन। सर वो कर्व का कैसे लिया एक बार बताओ ना। आपको ये जो फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो फ्रंट व्यू में ये जो क्वार्टर सर्कल है, इस क्वार्टर सर्कल मतलब इतना जो पोर्शन सरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस है वो कैसे दिखाई देगा? यस सर। रेक्टेंगल ना, तो Yes. रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, ये जो कर्वेचर पोर्शन है उसका इक्वल टू रेडियस बन जाएगा। यस सर। Then to draw the top view, draw the projection lines from each point. So first coincide your roller with the vertical reference line. Move your roller on back side. तो यहाँ पे क्या आएगी लाइन, यहाँ पे दोनों में से कॉमन पॉइंट में से इसमें से एक लाइन, इसमें से एक लाइन, और ये लाइन जो आपने एक्सिस ड्रॉ किया उसकी लाइन यहाँ पे ऐसी प्रोजेक्शन लाइन आपकी जनरेट होगी। अब हमें ड्रॉ करना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में ड्रॉ करते समय हम पहले क्या देखते हैं, which backside line is parallel to the reference line as well as nearer to the reference line, which backside line। तो हमारा यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन है एक्स वाई, तो इसको पैरेलल एंड नियरर लाइन कौन सी हो सकती है इसमें से? सर वो 10 mm वाली जहाँ मार्किंग है। करेक्ट, पीछे वाली। ये जो 10 mm वाली लाइन है ये हो सकती है, या ये जो लाइन है ये भी लाइन हो सकती है, नियरर टू द पैरेलल, सॉरी नियरर टू द रेफरेंस लाइन एंड पैरेलल टू रेफरेंस लाइन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 10 mm की लाइन है, वो वहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 10 mm की लाइन है वो किसको पैरेलल है? इस लाइन को पैरेलल है, मतलब इसका भी डायमेंशन 10 mm है। ये लाइन हमने ऑलरेडी फ्रंट व्यू में कहीं तो ड्रॉ की है, कौन सी वाली लाइन है? ये लाइन, तो इसका डायमेंशन भी 10 mm है।
उसके प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए। तो ये जो हम बैक साइड की लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो एग्जैक्टली इस दो लाइन के बीच में आनी चाहिए, ओके, बट पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। तो पहले यहाँ से 10 mm डिस्टेंस लो और वहां पे पैरेलल टू रेफरेंस लाइन उसको ड्रॉ करना है। अब ये जो दो लाइन है वो कैसी है रेफरेंस लाइन को, जो 30 mm वाली लाइन से ये दो परपेंडिकुलर, तो जो प्रोजेक्शन लाइन है उसके ऊपर ही हमें 30 mm डिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करना है। तो ये रेक्टेंगल हो गया प्लेन नंबर 2 कंप्लीट। अब 2 के बाद है 4, तो 4 नंबर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 4 नंबर का प्लेन है, जो है उसको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? सर वो जो 3rd नंबर की प्रोजेक्शन लाइन है वही वहां से, 3rd नंबर की प्रोजेक्शन मतलब इसके लाइन। बाद। तो 4 और 2 में कुछ कॉमन होगा या नहीं होगा? सर होगा ना कॉमन, वो एक साइड कॉमन रहेगी। ये जो 3rd नंबर का प्लेन है ये किसका है? हमारा साइड व्यू का है ना। तो साइड व्यू का प्लेन अगर रेक्टेंगल है तो वो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू में क्या होगा, एक लाइन बन जाएगी। तो ये जो लाइन है इसके साथ कोइंसाइड होगी, मतलब 2 और 4 में कॉमन लाइन बन जाएगी, ये वाली जो 2 की लेफ्ट साइड वाली लाइन है ये। तो मुझे 4 नंबर का प्लेन इसको अटैच करके ही ड्रॉ करना है। तो देखो ये जो 2 नंबर का पॉइंट है वो 4 नंबर के इस कॉर्नर के साथ कोइंसाइड हो रहा है। वो पॉइंट कहाँ पे? ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से मैं 4 नंबर का प्लेन स्टार्ट कर सकता हूँ। इसका डायमेंशन कितना हमने फाइंड आउट किया था? फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो 4 नंबर का प्लेन है वो 1 नंबर को कहाँ पर अटैच्ड है? जो फ्रंट व्यू का प्लेन था 1 नंबर उसको अटैच, टॉप व्यू का प्लेन फ्रंट व्यू के प्लेन को कहाँ पे अटैच्ड है? इस लाइन के ऊपर। ये लाइन हमने कहाँ पे ड्रॉ की है? यहाँ पे। तो इसके प्रोजेक्शन के बीच में हमारा 4 नंबर का प्लेन आना चाहिए। okay? तो ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ की और ये कॉमन पॉइंट यहाँ से। तो यहाँ पे फिर से डायमेंशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया, सॉरी फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरा 4 नंबर का प्लेन यहाँ पे बन जाएगा। अब ये 5 नंबर वाला प्लेन है वो मुझे ड्रॉ करना है, लेकिन ये जो 5 नंबर है वो टॉप व्यू का है, करेक्ट। फ्रंट व्यू को वो कहाँ पे अटैच्ड है? ये 5 नंबर वाला प्लेन, उसमें ये जो कर्वेचर है वो फ्रंट व्यू में स्ट्रेट लाइन होगी और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, ये क्या आपको इंडिकेट कर रही है? ये आपका प्लेन नंबर 5 है जो टॉप व्यू में होगा। हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया इसलिए ये प्लेन का ये सामने वाली लाइन इसके साथ कोइंसाइड होगी, ये कर्वेचर पूरा कोइंसाइड होगा, इसलिए हमें यहाँ पे एक कॉमन लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये 5 नंबर का प्लेन अटैच है, तो इसके बीच में हमारा 5 नंबर का प्लेन आना चाहिए। और ये क्या हमारी यहाँ पे होगी? एक्सिस है, मतलब ये यहाँ पे सर्कल, अब सर्कल यहाँ पे आने वाला है ना, तो यहाँ पे उसकी सेंटर लाइन बनने वाली है। तो पहले हम इसको सेंटर लाइन करके ड्रॉ करते हैं। और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है प्लेन नंबर 5 की, वो सेंटर लाइन तक ही है, तो हमें यहाँ तक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। और आगे क्या है हमारा? सेमी सर्कल। तो आगे हमारा सेमी सर्कल है, हमने ये सेमी सर्कल की स्ट्रेट लाइंस बनाई है ना फ्रंट व्यू में। तो पहले सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करो। तो ये सेमी सर्कल बन गया। अब ये हमारा प्लेन नंबर हो गया ऊपर का 5 नंबर का प्लेन, ये 4 नंबर वाला प्लेन और ये 2 नंबर वाला प्लेन, जो टॉप व्यू में तीनों प्लेन्स विजिबल हो रहे थे एंड एक दूसरे को वो अटैच्ड है ऑन द कॉमन लाइंस। ये 2 और 4 यहाँ पे अटैच्ड है
4 एंड 5 यहाँ पे अटैच्ड है। अब मुझे ये बताओ कि ये लाइन किसकी होगी। एक्चुअल में ये जो लाइन है वो लाइन आपको फ्रंट व्यू में लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन किसी एक व्यू में वो प्लेन होगा। वो किस प्लेन की ये लाइन है? थर्ड। करेक्ट, थर्ड। थर्ड नंबर वाली। ये लाइन किसकी है? सेवेंथ। 7 की लाइन है। करेक्ट। ये लाइन किसकी है? सेकेंड। सेकेंड। ये 4 की, और ये पूरी लाइन हमारी 5 की। ये पहले आइडेंटिफाई करना सीखो आप लोग, ठीक है। अब ये लाइन किसकी है? कौन से प्लेन की है? टॉप व्यू में लाइन दिखाई दे रही है, मतलब किसी एक व्यू में वो प्लेन होगा। नहीं, वो विजिबल है, सॉरी। ये लाइन बताओ। थर्ड। थर्ड। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि थर्ड हमारा साइड व्यू में विजिबल होने वाला है, तो बाकी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में वो लाइन नहीं दिखाई देगा आपको। अब मुझे इसमें बताओ, आपने ये व्यू ड्रॉ किया है, किसको ऑब्जर्व करके? इसको ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, करेक्ट। तो ये कॉर्नर यहाँ पे, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर, ये मिलाकर यहाँ पे कोई तो प्लेन होगा इसके पीछे वो, ठीक है। वो तो अपने यहाँ पे उसकी लाइन बना दी। देन ये जो 2 पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट्स कोइंसाइड होने वाले हैं, लेकिन ये आपको पॉइंट्स फ्रंट व्यू में दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे थर्ड नंबर का प्लेन है, तो उसकी लाइन अपने टॉप व्यू में ड्रॉ करनी है। तो मुझे ऐसे कंसिडरेशन करके ये बताओ कि आपको यहाँ पे कुछ हिडन ड्रॉ करना है कि नहीं करना। सर्कल हाँ छोड़ दो। सर, सेवेंथ वाला। करेक्ट। सेव सर्कल नहीं, सर्कल अभी कंसीडर मत करो, हम सर्कल को गए ही नहीं अभी तक। उसके अलावा आपको कुछ लग रहा है क्या कि आपको हिडन कुछ तो ड्रॉ करना पड़ेगा? कुछ तो लाइंस है वो हिडन है, दिखाई नहीं दे रही है। या इसमें देखो, ऊपर से देख रहे तो कोई पॉइंट आपको विजिबल नहीं हो रहा है। सेवेंथ वाला प्लेन। करेक्ट, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स कोइंसाइड होंगे मतलब ये दोनों विजिबल है। ये 2 पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं मतलब विजिबल है। ये तो ऊपर का दिख रहा है तो ये बॉटम का मतलब कोइंसाइड हो रहा है तो वो विजिबल है। ये दोनों पॉइंट भी विजिबल है। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स है इस लाइन के नीचे है, मतलब वो हिडन है। और ये जो 2 पॉइंट है वो कौन से, सॉरी, ये जो लाइन है वो कौन सी प्लेन की है? 7 नंबर की प्लेन। तो इसकी जो लाइन बनेगी टॉप व्यू में, क्योंकि 7 प्लेन तो हमारा साइड व्यू का प्लेन है, तो अगर फ्रंट व्यू में लाइन है तो टॉप व्यू में भी उसकी लाइन बनेगी इसके नीचे एग्जैक्ट। तो ये जो प्लेन है, प्लेन 7 हिडन प्लेन है, तो मुझे क्या करना होगा? इसकी एक हिडन लाइन ड्रॉ करनी होगी। ओके, इस तरह से आपका ये टॉप व्यू अब फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट। नहीं, अभी सर्कल है वो बाद में हम देखने वाले, लेकिन यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। सर वो फ्रंट व्यू में 42 के बाद की लाइन, वो कौन सा डिस्टेंस लेना है? कौन सी? वो फ्रंट व्यू में 42 के बाद की, हाँ उसके बाद की, हाँ उसके बाद की लाइन की डिस्टेंस कैसे लेना? ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस कितना लेना है, आपने ये क्वेश्चन पूछा ना, तो हमने यहाँ पे 15 दिया है ना। और उसके बाजू वाली की, ये वाली, हाँ हमने पहले क्या किया? हमने ये 10 mm ड्रॉ किया, देन ये 15 mm की लाइन ड्रॉ की, ये 22 की लाइन ड्रॉ की, ये 15 की लाइन ड्रॉ की, और इसका डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया था ना 56 माइनस, हमें क्या करना था? इतना डायमेंशन माइनस करना था। तो ये 22 प्लस 10, 32 हमने माइनस कर दिया, तो कितना मिल गया? 56 से 32 माइनस 24 मिल गया। तो मैंने ये 24 की लाइन ड्रॉ की। ओके, और आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो कर्वेचर है क्वार्टर सर्कल का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो नीचे वाला कर्वेचर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वर्टिकल लाइन से। मतलब ये जो दोनों कर्वेचर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सर्कल के। जो रेक्टेंगल आपका क्वार्टर सर्कल का बनने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्टिकल लाइन। तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की थी इसके एंड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, तो मुझे ये लाइन का डायमेंशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक। और अगर आपको फाइंड आउट करना ही है तो जो आपने 24 फाइंड आउट किया था उसमें से 10 माइनस कर दो। ओके सर, ओके, तो आपको अब क्या करना है? साइड व्यू ड्रॉ करना। तो पहले 45 डिग्री का एक पॉइंट मार्क करो, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है।
45 डिग्री की लाइन and then draw the projection lines. तो यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल की दो सेंटर लाइंस होती है, सेमी सर्कल है तो यहाँ पे हमें एक सेमी सर्कल लाइन ड्रॉ करनी होगी और उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लेना होगा। And then draw the projection line from the front view also. Sorry, यहाँ पे ये लाइन की अलग प्रोजेक्शन लाइन होगी और इसकी अलग प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि हमारा एरिया डिफाइन करना है। साइड व्यू के लिए हम कौन सा एरिया यूज करने वाले, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने तो लाइंस है वो ऐसे ही ड्रॉ कर ली, लेकिन हमें अभी तक एरिया डिफाइन नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन फ्रंट व्यू की, नीचे वाली लाइन टॉप व्यू की, सबसे ऊपर वाली लाइन एंड नीचे वाली लाइन, ये चारों लाइन के कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये लाइन इसके साथ कहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। देन सेम लाइन नीचे वाली लाइन टॉप व्यू की कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। अब ये बॉटम वाली लाइन फ्रंट व्यू के टॉप व्यू के टॉप लाइन से इसके साथ यहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, और ये जो लाइन है वो इसके साथ कहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, यहाँ पे कोइंसाइड। तो ये जो 4 पॉइंट्स है वो 4 पॉइंट्स ने आपका डिफाइन कर दिया कि एरिया कौन सा एरिया आपको यूज करना है टू ड्रॉ द साइड व्यू। ओके, अब आप देखो साइड व्यू, अब हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है तो हम फ्रंट व्यू को कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा साइड व्यू बनने वाला है, मतलब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको अब कौन से प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं साइड व्यू में? सर 7 करेक्ट, और ऊपर का सेमी सर्कल वाला पार्ट 6। अब ये पूरा सेमी सर्कल, अभी तो क्वार्टर सर्कल हमने साइड फ्रंट व्यू में देखा था, लेकिन अब साइड व्यू में क्या होगा, पूरा सेमी सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा। तो जो रेक्टेंगल बनने वाला है उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमीटर एंड थिकनेस 8 mm। तो डायमीटर कितना है 30, तो ये 30 एंड 8 mm थिकनेस, इतना रेक्टेंगल बनेगा। तो मुझे अब यहाँ पे बताओ कि इसमें रेक्टेंगल वो कहाँ पे ड्रॉ करना होगा। अब इसका ये जो सेमी सर्कल है या क्वार्टर सर्कल, वो फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू में कहाँ पे, सॉरी टॉप व्यू में कहाँ पे ड्रॉ किया हो, देखो फ्रंट व्यू में कहाँ पे वो सेमी सर्कल का जो पोर्शन है हमने वो ड्रॉ किया है, वो या क्वार्टर सर्कल का ये वाला है ना। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे ही आपका Yes, सेमी sir. सर्कल है ना, तो इसके प्रोजेक्शन देखो, ये प्रोजेक्शन लाइंस होगी, ये दो ऊपर की दो प्रोजेक्शन लाइंस। तो मतलब ये लाइन, ये दो लाइन के बीच में कहीं ना कहीं तो हमारा रेक्टेंगल बनने वाला है। लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना छोटा रेक्टेंगल बनाऊं या इतना बड़ा रेक्टेंगल बनाऊं। तो उसके लिए हम कहाँ से रेफरेंस लेंगे, यहाँ से, ये जो टॉप व्यू है टॉप व्यू का रेफरेंस लेंगे। तो ये टॉप व्यू में सेमी सर्कल मिल रहा है, तो इसके ये जो दो प्रोजेक्शन लाइंस है वो दो प्रोजेक्शन लाइंस ऊपर की दो लाइंस को इस 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये जो ऊपर का रेक्टेंगल होगा, देखो थिकनेस तो इतना ही है, वो थिकनेस ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और उसका रेक्टेंगल बनने वाला है उसकी डायमीटर, तो डायमीटर लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपका वहां पे रेक्टेंगल मिलेगा सेमी सर्कल का। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द 7 नंबर प्लेन। 7 नंबर प्लेन की लाइन फाइंड आउट करो, फ्रंट व्यू में कहाँ पे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वर। तो 7 नंबर की लाइन कौन सी है हमारी, फ्रंट व्यू में ये वाली लाइन है ना। हाँ सर। तो उसके प्रोजेक्शन लाइंस देखो, कौन सी दो प्रोजेक्शन लाइन है, ये दो प्रोजेक्शन लाइंस। तो इसके बीच में हमारा वो रेक्टेंगल यहाँ पे बनने वाला है, ये दो प्रोजेक्शन लाइन के बीच में। लेकिन उसकी थिकनेस या विड्थ कहाँ से मिलेगी, टॉप व्यू में। तो 7 नंबर की लाइन टॉप व्यू में हमने कहाँ पे ड्रॉ की थी, ये 7 नंबर प्लेन की लाइन टॉप व्यू में, ये हिडन लाइन है। तो उसका थिकनेस, सॉरी लेंथ, इतनी लेंथ है। तो ये दो प्रोजेक्शन लाइंस इस लाइन को, ये जो दो लाइन है इसको इंटरसेक्ट होगी 1, 2, 3 एंड 4 नंबर। तो ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये मेरा प्लेन नंबर 7 हो गया। कंप्लीट आपका साइड व्यू
होल छोड़ दो, सर्कुलर होल हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे। उसके अलावा आपका साइड व्यू कंप्लीट हो गया कि नहीं? नहीं सर, वो सेमी सर्कल की लाइन भी निकालनी पड़ेगी ना, कौन सा सेंटर सेमी लाइन, सर्कल? वो जो ओके ऊपर ओके, साइड व्यू में रेक्टेंगल। ओके ओके, सेमी सर्कल की सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा सर द प्लेन नंबर 3। करेक्ट, प्लेन नंबर 3। ओके, जो हम यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन प्लेन नंबर 3 की जो लाइन है फ्रंट व्यू में वो तो विजिबल नहीं है। तो उस ठीक है, ऊपर का जो पॉइंट है वो ये दो पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो रहा है, इसलिए ये ऊपर की लाइन हमें विजिबल होगी। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें विजिबल नहीं होगा, थर्ड नंबर प्लेन। तो इस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन लाइन है उसके ऊपर मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? हिडन लाइन। मतलब ये जो लाइन है वो लाइन मुझे विजिबल नहीं है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये वाली लाइन, तो वो लाइन कहाँ पे? थर्ड के बॉटम में। ये जो लाइन है फ्रंट व्यू की, उसके बॉटम से वो प्रोजेक्शन लाइन है, वहां पे मुझे ड्रॉ करना होगा हिडन लाइन। अब मेरा टॉप साइड व्यू कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब हमें क्या ड्रॉ करना है? सिर्फ सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो सर्कल कहाँ पे, कौन से व्यू में विजिबल है? फ्रंट व्यू में विजिबल, सॉरी टॉप व्यू में विजिबल है। तो मुझे पहले सर्कल टॉप व्यू में ड्रॉ करना है। उसका डायमीटर है 12 mm, तो रेडियस 6। आप लोग भी ड्रॉ कर रहे हैं, करना है ड्रॉ आपको भी। तो ये सर्कल हो गया टॉप व्यू। आपने ऑलरेडी ये प्रोजेक्शन लाइन सेंटर लाइन की ड्रॉ की है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, जो सर्कल किस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उसमें से मुझे प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करना है, और ये जो लाइन है उसको हिडन बनाना है। कहाँ से? ऊपर से नीचे तक, करेक्ट। ये जो सर्कल की हिडन लाइंस आएगी ना, क्योंकि फ्रंट व्यू में मुझे सर्कल विजिबल नहीं है, और ये जो होल है वो, तो होल की मुझे हिडन लाइंस बनाना है। तो वो हिडन लाइन इस ऊपर के पॉइंट से ये जो नीचे का पॉइंट होगा वहां तक हिडन लाइन आएगी, करेक्ट ना? ये पूरी लाइन करना है ना, यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सर वो नहीं सर समझ। नीचे वाला पॉइंट क्यों? ये जो अब हम देखो, ये जो हमारा एक्स डायरेक्शन है, इसमें ये जो होल है, ये होल तो टॉप व्यू में सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे फ्रंट व्यू में दिखाई देगा क्या? होल नहीं ना, उसकी हिडन लाइन ड्रॉ करना है मुझे। तो yes, मैंने sir. होल सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ की। तो अब ये प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर मुझे हिडन लाइंस ड्रॉ करना है। तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन ड्रॉ करनी होगी ना, कंप्लीट। नहीं सर, वो ऊपर वाले रेक्टेंगल में ही हिडन लाइंस आएगी ना, जो ऊपर करेक्ट स्मॉल रेक्टेंगल। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि जो होल है वो होल सिर्फ इस थिकनेस में। ये एग्जाम में स्टूडेंट जो आप लोग ये मिस्टेक करते, बहुत सारे लोग करते हैं कि हमने ये प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की, इसकी इतनी हाइट है तो ये पूरा हिडन कर दो। लेकिन ये आपको देखना है कि आपका जो होल है वो होल कहाँ पे है? सिर्फ इसके बीच में होल है ना, तो नीचे कैसे हम हिडन कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन जो है लाइन का, वही हमें हिडन करना होगा। तो सिर्फ इतने, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी हिडन बन जाएगी। अब साइड व्यू के लिए प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। अब इस केस में तो हमें पूरा हिडन करना होगा ना। अब इसमें साइड व्यू में पूरा हिडन हो सकता है। ये जो हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है सर्कल की, ये तो पूरी हिडन हो सकती है ना, कि नहीं? यस सर। नहीं सर, नो सर, ऊपर नहीं का हो सकती, हमारा होल इतना ही है। तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन देखो कहाँ पे है? सिर्फ ये ऊपर वाला रेक्टेंगल, इसके अंदर ही होल होगा ना। अगर होल, अब एक व्यू में आप बोल रहे हैं कि इतनी हाइट है, और दूसरे व्यू में बोल रहे हैं कि इतनी हाइट है, ये कैसे पॉसिबल है? जितनी हाइट यहाँ पे है उतनी ही हाइट दूसरे व्यू में होनी चाहिए। हमने देखा था ना सर्कल के केस में भी।
इस केस में देखो जितनी ये हाइट है, अब ये होल नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पे जितनी हाइट है उतनी हाइट यहाँ पे है ना। अगर मैं इसके अंदर होल निकालता हूं तो इसकी हिडन लाइन यहाँ पे आएगी इसके अंदर, और सेम हिडन लाइन इसके अंदर आएगी सेम हाइट की। आप बोलेंगे क्या इसमें इतना ही होल चाहिए, हाफ चाहिए और यहाँ पे फुल होना चाहिए? जिस थिकनेस में ये जो हमने प्लेट, आगे वाली प्लेट है, उसका थिकनेस कितना है? इतना है। हम साइड व्यू में देखेंगे तो पूरा होल आएगा क्या नीचे तक? जितनी ये प्लेट की थिकनेस है उतनी ही में उसमें ही होल आने वाला है सिर्फ। तो हमें क्या करना है, जो प्लेट है उस प्लेट में ही वो हिडन लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ये डिटेल प्रॉब्लम? कहाँ पे यस सर। सेमी सर्कल अगर होगा तो हम कहाँ से देखेंगे? तो वो क्वार्टर सर्कल दिख रहा है तो उसका डायमेंशन कैसे लेना है, देन कौन सी लाइन हिडन होनी चाहिए, तो चेक करना है। अगर मुझे टॉप व्यू ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को कौन सा पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट विजिबल नहीं हो रहा है, तो ये 2 पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट, ये जो लाइन है वो लाइन किसकी थी? यहाँ पे देखने क्वेश्चन में ये वर्टिकल लाइन है तो 7 की लाइन है, तो 7 की लाइन टॉप व्यू में भी लाइन ही दिखाई दे रही है तो वो हिडन लाइन ड्रॉ करना है। तो 7 प्लेन मेरा साइड व्यू का है, तो टॉप व्यू में भी मुझे हिडन लाइन ही दिखाई देगी, तो इस लाइन के प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर मुझे वो हिडन लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट करनी है। अब हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। अगर आपका कंप्लीट करो आप लोग प्रॉब्लम, हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आधा नहीं छोड़ना है, सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट करना है। जो भी डाउट्स है वो डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर करना है। हमने अभी बेसिक स्टार्ट किया है तो इसमें डाउट आएंगे 100%, लेकिन हम जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे अगर डाउट आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं तो हम डिफिकल्ट में कैसे जाएंगे। सर या जो टॉप व्यू में हमने वो 7th प्लेन की हिडन लाइन की थी ना, हाँ, वो 7th प्लेन जो 5th प्लेन में मर्ज हो गया ना? मर्ज ऐसे नहीं बोल सकते, उसकी लाइन तो यहाँ पे आएगी ना, बीच में आएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगी ना, ये लाइन आएगी ना यहाँ पे। मर्ज नहीं बोल सकते क्योंकि ये ऊपर वाला 5th प्लेन है और नीचे 7th प्लेन है, वो प्लेन विजिबल नहीं, इसलिए हमने हिडन ड्रॉ की है। मर्ज नहीं बोल सकते उसको। ओके, मतलब ओके। तो वो 8 से 8 मिलीमीटर का गैप नहीं छोड़ना है ना? क्या पे उस 7th लाइन हिडन दिखाई है ना हमने, हाँ, तो वहाँ पे 8 मिलीमीटर का गैप नहीं छोड़ना, ये वाला ऊपर का, हाँ, हिडन लाइन का। ये तो आप क्या करेंगे, हिडन लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है? आपने ये 7 नंबर की प्लेन की लाइन ड्रॉ की है, उसके नीचे ही प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर ही आएगी ना। ये 7 है, उसके प्रोजेक्शन के ऊपर ही 7 नंबर की लाइन आएगी। गैप तो हमने कुछ भी नहीं देखा कि गैप कहाँ पे आएगा, हमने सिर्फ क्या किया, 7 नंबर की ये लाइन है तो उसके प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर ही उसको ड्रॉ करना है। ओके, हमने कुछ डिस्टेंस मेजर ही नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली 10 mm आ गया यहाँ पे, और उसी 2 प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर हमने ये जो लाइन है वो ऊपर वाले कॉर्नर को लाइन है, ये विजिबल लाइन है, उसको ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे जो 7 नंबर की लाइन होगी वो 7 के नीचे ही आएगी हिडन, इसलिए प्रोजेक्शन लाइंस इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्शन लाइंस आपको डायरेक्टली आइडिया देती है कि कौन सी लाइन कहाँ पे आनी चाहिए। ओके, 2 मिनट में कंप्लीट करो। ओके, वन मोर पॉइंट, डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे देना है आपको? अब इसमें कितने डायमेंशंस है? सपोज यहाँ पे 130 है। अब ये जो 30 डायमेंशन है वो मैं कहाँ, हाँ, जितने पहले काउंट करो, अप्रोक्सीमेटली काउंट करो कितने डायमेंशन है। 1 2 3 उन्होंने क्वेश्चन में दिए, उतनी डायमेंशंस मेजर करना है और उतनी डायमेंशंस आपको आंसर में शो करना है। आपने जो कैलकुलेशन करके इसका डायमेंशन फाइंड आउट किया था वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो मत दिखाओ।
जो उन्होंने क्वेश्चन में जितने डायमेंशंस मार्क किए उतने डायमेंशंस आपको इसमें दिखाने, लेकिन वो डायमेंशंस दिखाते समय पहले काउंट करो कितने डायमेंशंस है अप्रोक्सीमेटली 1 2 3, देन यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे डायमीटर 6 है, देन ये 8 7 9 सॉरी 7 and 8 15 9 10 एंड 11 डायमेंशंस है। तो इस 11 डायमेंशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, अप्रोक्सीमेटली इक्वली तीनों व्यूज में। तो 11/3 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और उसको राउंड अप करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 3 4 4 4 4 4, अब 11 है मतलब 3 रहेंगे, तो यहाँ पे 4 डायमेंशन दो, यहाँ पे 4 डायमेंशन दो, इसमें 3 डायमेंशन दो। ठीक है, डायमेंशंस रिपीट भी नहीं करना है आपको। ये जो 30 एक बार आपने दिखाया तो बस इतना ही, उसको रिपीटेशन करना नहीं है, क्योंकि देखो ये जो लाइन है सेकंड की, इसका 30 mm डायमेंशन है, और सेम डायमेंशन इसका भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है 30 mm डायमेंशन, ये दो लाइन के बीच में गैप, तो एक जगह पर ही वो डायमेंशन दिखाना है। तो मैंने अगर यहाँ पे 30 mm दिखाया डायमेंशन, तो वो रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे 30 mm, देन ये 42 हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, और ये दो प्रोजेक्शन लाइन के बीच में ये जो गैप है तो टॉप व्यू में भी दिखा सकते हैं। तो कहीं एक ही व्यू में उसका डायमेंशन शो करना है आपको, तो यहाँ पे बेटर रहेगा। तो 42 यहाँ पे दिखा, देन 56 देखो, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से इस लाइन तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस है 56, करेक्ट, सेंटर पॉइंट टू एंड तक का। तो ये 56 में यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ और यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, तो कहीं एक ही व्यू में उसको दिखाना है आपको। तो ठीक है, मैं इसमें दिखाता हूँ, आपको चाहिए तो आप फ्रंट व्यू में भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप व्यू में ही दिखाना है, आप कहीं पे भी, लेकिन एक ही जगह पे आप उसको मेंशन करना है। अब सर्कल एंड सेमी सर्कल हो तो उसी व्यू में उसके डायमेंशंस आने चाहिए, जहाँ पे सर्कल या सेमी सर्कल दिख रहा है वहां पे। तो सेमी सर्कल के डायमेंशंस कैसे देते हैं आप, इसकी रेडियस दी है ना, तो मुझे क्या करना है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना है, उसको एक्सटेंड करना है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीडर लाइन, आगे जो एक्सटेंड किए उसको, और लीडर लाइन के एंड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। इसके ऊपर आपकी नोट लिखना है, कितना डायमीटर, सर रेडियस कितनी लिखनी है, R15, और रेडियस है मतलब ये जो सर्कमफरेंस को इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे आपको एरो ड्रॉ करना है। तो ये रेडियस है, और उसका डायमेंशन लिखने के लिए हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया, लीडर लाइन, और उसके ऊपर हमने नोट लिखी है R15। अब ये स्मॉल सर्कल है, उसका डायमेंशन दिखाने के लिए भी सेम करना है, लीडर लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे लिखना है डायमीटर 12, बट यहाँ पे एरोज डायमीटर है ना, तो दोनों साइड में एरोज आनी चाहिए, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो आनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 डायमेंशंस हो चुके हैं, अब यहाँ पे 1 हो चुका, और कौन बाकी है, 10 mm। ये 10 mm डिस्टेंस है, वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद ये 10 mm डिस्टेंस है, इसमें कौन सा डायमेंशन दिखा सकते हैं हम, 15 mm, ये 15 एंड ये 8, ये 2 डायमेंशन हम साइड व्यू में दिखा सकते हैं। यहाँ से ये 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक का 15, और ये 8 mm। ओके, और कुछ डायमेंशन बाकी है, इसका थिकनेस तो 8 mm यहाँ पे हमने शो कर दिया है। अब हमने 56 भी डायमेंशन दिखा दिए हैं, डायमीटर्स भी दोनों दिखा दिए हैं। ठीक है, और जो भी मिसिंग डायमेंशन है वो मिसिंग डायमेंशन आप बाद में दे दो, लेकिन डायमेंशन देते समय हर एक व्यू में एटलीस्ट 2 डायमेंशंस तो आपको दिखाना है। लेकिन जो क्वेश्चन में जितने दिए वो सारे डायमेंशंस आपके आंसर में आने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि दोनों व्यू में ही सब डायमेंशंस मैंने दे दिए, नहीं, थोड़े डायमेंशंस साइड व्यू में भी आपको देने पड़ेंगे, तो ही डायमेंशन का 1 मार्क जो रिजर्व होता है वो रिजर्व मार्क आपको मिल सकता है। ओके, ये क्वेश्चन एंड सेम में 8 मार्क के लिए आने वाला है, और 8 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रंट व्यू 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स फॉर द टॉप व्यू
प्लस 2 मार्क्स फॉर द साइड व्यू प्लस 1 मार्क फॉर द लाइन वर्क, मतलब जो लाइट लाइन चाहिए वही लाइट लाइन है क्या, डार्क लाइन कौन सी है वही डार्क लाइन है क्या, वो सब यहाँ पे 1 मार्क होगा, एंड 1 मार्क फॉर द डायमेंशंस। इस तरह से ये 8 मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। सर हाँ स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है। अब दिख रहा है? हाँ हाँ सर। ओके, तो ये 8 मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है एंड टर्म एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Okay, so this is our question. Now in this question there is no any circular curvature portion. Okay, all lines are the straight lines. So first give the number. आपके मन में ही रखना है, एग्जाम में कभी भी नंबर्स नहीं देना है, मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड होने के लिए नंबर्स दे रहा हूँ। 1 नंबर 2। अब ये जो पूरा प्लेन है वहां से यहाँ से ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो जैसे यहाँ पे पोर्शन है वैसे ही उस साइड में पोर्शन होगा, तो ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे जैसे वर्टिकल रेक्टेंगल है वैसे उस साइड में भी रेक्टेंगल होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो 8। तो ये नंबर्स मैंने यहाँ पे दे दिए। अब आपको पहले आइडेंटिफाई क्या करना है कि विच प्लेन्स आर विजिबल इन फ्रंट व्यू एंड फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के प्लेन्स कौन से? नंबर 1 1 5 5, तो ये दोनों मुझे ड्रा करना है। और दोनों में कॉमन लाइन कौन सी है? कौन से प्लेन की लाइन कॉमन है? प्लेन 6 वाले प्लेन की। करेक्ट, 6 प्लेन हमारा फ्रंट व्यू का नहीं है, इसका मतलब वो फ्रंट व्यू में लाइन बनने वाली है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों कोइंसाइड होने वाले हैं। चलो ड्रॉ करो, आप लोग भी फ्रंट व्यू ड्रॉ करो।
तो बेस में 76 है, उसके बाद ये राइट में 45 की लाइन है एंड लेफ्ट में 15 mm की लाइन है। तो लेफ्ट में 15, राइट में 45। देन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 19 mm। आप खुद से ड्रॉ करो। और बाद में अगर आपको ये जो अब हम यहाँ तक आ गए, ये हमने ड्रॉ कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया, अगर हमें डायमेंशंस फाइंड आउट नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं? अगर विदाउट डायमेंशन मुझे ये दो लाइंस ड्रॉ करना है, हमने ये लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, फिर ये लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, तो मुझे ये जो दो लाइंस है वो ड्रॉ करना है विदाउट मेजरिंग द डिस्टेंसेस और विदाउट फाइंडिंग द डायमेंशंस। क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्शंस लेंगे। करेक्ट, क्योंकि आपको पता है ये लाइन इसको पैरेलल है और ये वर्टिकल लाइन इसको पैरेलल है, तो जस्ट ड्रॉ द लाइट लाइन फर्स्ट। ओके, यहाँ से मैंने एक लाइट लाइन ड्रॉ कर ली और इसको पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली, तो क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। वो वाला, वो कौन सा? ये वाला पॉइंट है। अब ये दो लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया एल शेप। अब मुझे 1 नंबर का प्लेन कंप्लीट हो गया। अब मुझे 5 नंबर का प्लेन ड्रॉ करना है, उसमें और 1 में ये लाइन कॉमन है, तो मुझे क्या करना होगा? ये जो लाइन ड्रॉ करना है 5 की, अब ये तो लाइन 5 की हो गई आपकी, तो मुझे ये लाइन ड्रॉ करना है। इसका डायमेंशन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना आएगा डायमेंशन इस लाइन का? इस लाइन का 60। डायमेंशन, करेक्ट। आपको क्या दिया है? ये 35 डिस्टेंस दिया है, करेक्ट, टोटल। तो 35 में से अगर 19 हम माइनस करते तो हमें इस लाइन का डायमेंशन मिलेगा। तो 35 माइनस 19, 16 mm। अब ये स्लांट लाइन है, तो मुझे पहले ये बॉटम की जो लाइन है उसका ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन तो कुछ भी नहीं दिया है स्लांट लाइन का। बॉटम वाली लाइन का डायमेंशन बोलो कितना होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर 32। हाँ, कैसे फाइंड आउट किया? सर वो 25 प्लस 19 और इजी प्लस और वो जो डायमेंशन इज इक्वल टू 76 होगा वो टोटल वाला जो ओके, तो ये 76 है, ठीक है, टोटल। तो 76 में से ये 25 माइनस हो जाएंगे और इस साइड के 19 माइनस हो जाएंगे, तो हमें ये डायमेंशन मिलेगा। वो कितना आता है? 32। तो 32 पर एक पॉइंट मार्क करो इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये दोनों लाइन कोइंसाइड होगी ना, दोनों लाइन कोइंसाइड होगी, मतलब ये कॉमन लाइन होगी दोनों की। तो यहाँ से 32 यहाँ पे मार्क करना है और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये मेरा प्लेन नंबर 5 बन जाएगा। देन ड्रॉ द रेफरेंस लाइंस। इसमें सबसे राइट वाली लाइन ये है, यहाँ से 10 mm डिस्टेंस, और सबसे बॉटम वाली लाइन से 10 mm डिस्टेंस। ओके, तो ये मेरी दो रेफरेंस लाइंस है। अब मुझे ड्रॉ करना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करनी होगी हर एक पॉइंट से। सो फर्स्ट कोइंसाइड योर रोलर विद द वर्टिकल रेफरेंस लाइन, देन मूव स्लोली। तो आप देखो ये दोनों में कॉमन दोनों पॉइंट्स, यहाँ पे दो पॉइंट्स है, दोनों एक ही लाइन पर है, तो एक कॉमन प्रोजेक्शन लाइन। यहाँ पे ये दो पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन कॉमन होगी।
देन यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है लेकिन इसके साथ दूसरा को पॉइंट नहीं है, तो ठीक है, उस पॉइंट की भी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है हमें। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है तो उसकी भी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन। तो ये सारी प्रोजेक्शन लाइन्स आपको ड्रॉ करनी होगी। सर हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन निकालना है? यस, हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन आना चाहिए, कोई भी पॉइंट वहां पे छूटना नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ऑब्जेक्ट में, ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक लाइन है ना, तो वो लाइन अगर मुझे टॉप व्यू में ड्रॉ करना है तो वो मुझे प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ना उसका, तो ही समझ में आएगा कि इस लाइन के ऊपर मेरी ये लाइन बनने वाली है टॉप व्यू में। ओके, नेक्स्ट टू ड्रॉ द टॉप व्यू हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो बैक साइड इस साइड की होगी, तो बैक साइड में हमारी रेफरेंस लाइन है, तो विच लाइन इज पैरेलल टू रेफरेंस लाइन एंड नियरर टू द रेफरेंस लाइन? सर थर्ड प्लेन की लास्ट वाली लाइन। ओके, वो भी लाइन है, चल सकता है, वो भी ड्रॉ किया। और कौन सी लाइन होगी? 7th प्लेन की। 7th प्लेन की ये भी लाइन है, इसका डायमेंशन 19 है, तो हम ये भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी लाइन, क्योंकि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है जो टॉप व्यू में पॉइंट बन जाती है, मतलब कॉमन पॉइंट होने वाला है, लेकिन हम 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले 7 की हम ड्रॉ करेंगे ये लाइन, तो 7 नंबर की ये जो लाइन है वो फ्रंट व्यू के किस लाइन के साथ मैच हो सकती है? फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ किया, राइट हैंड साइड में फर्स्ट वाला 19 वाली लाइन है ना जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो उसके बीच में ही हमारा जो बैक साइड की लाइन है ये वाली, वो लाइन इसके बीच में ही आएगी। ओके, इसलिए प्रोजेक्शन लाइंस इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी बैक साइड की लाइन होगी। अब मुझे ये 40 की लाइन ड्रॉ करना है जो राइट साइड में परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन 40 mm। उसके बाद फिर से ये 19 mm जो पैरेलल टू रेफरेंस लाइन है। अब ये जो 2 लाइन्स है इसका डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? कितना होगा डायमेंशन इस 2 लाइन का? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 10 होगा। 10 होगा क्योंकि ये टोटल 40 है, इसमें ये बीच में जो गैप है वो 20 mm है, तो 20 रह गया, 20 डिवाइड बाय 2, 10 10, तो दोनों साइड से 10 10 mm की। और आगे ये हमने फाइंड आउट किया था, फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें ये लाइन ड्रॉ करना है ना, ये लाइन हमने फ्रंट व्यू में कहीं तो ड्रॉ की है, चेक करो कहाँ पे, यहाँ पे है ना, हाँ ये लाइन, तो इसके प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए, दोनों पॉइंट के प्रोजेक्शन ये, तो उसके बीच में ही वो लाइन आएगी, उसके लिए हमें फिर से मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ की, सेम यहाँ पे इस साइड में भी लाइन है, और दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये ऊपर का जो टी दिख रहा है वो टी हमारा कंप्लीट हो गया, प्लेन नंबर 7। अब प्लेन नंबर कौन सा रह गया है, कौन सा प्लेन बाकी है? और 3rd, बस ओनली 3rd, 4th, हाँ 4th स्लांट है, तो स्लांट प्लेन जो है वो एक व्यू में दिखाई देगा या 2 व्यू में दिखाई देगा? स्लांट प्लेन सो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी ऊपर से। स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, लेकिन जो प्लेन है, जैसे कि हमने देखा कि ये 7 प्लेन है वो सिर्फ मुझे टॉप व्यू में दिखाई देता है, 1 नंबर का प्लेन मुझे फ्रंट व्यू में ही दिखाई देगा, अदर 2 व्यू में उसकी लाइन बनने वाली है। उस तरह से ये जो स्लांट प्लेन है वो स्लांट प्लेन एक ही व्यू में दिखाई देगा या 2 व्यू में दिखाई देगा, उसका डायमेंशन चेंज हो, 2 व्यू में दिखाई देगा, करेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे देखो, 1 मिनट, यहाँ पे ये स्लांट लाइन आपने ऑलरेडी ड्रॉ की है प्लेन नंबर 4 की। ओके, अब मुझे ये बताओ कि इसका डायमेंशन सपोज 50 mm है, और यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन। अब इस जब मैं ऊपर से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे डायमेंशन उसका 50 mm ही मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? सर डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग? सर उसका कॉस कंपोनेंट।
नहीं नहीं, कैलकुलेशन नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। सर वो प्रोजेक्शन के इंटरसेक्शन से ऊपर से आप देख रहे हैं ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लाइट फोकस कर दी, ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब ये रेज पैरेलल टू ईच अदर है तो क्या होगा, जो भी रेज है वो रेज इस पोर्शन पर पड़ेंगे, वो नीचे तक नहीं आएंगे। लेकिन ये जो कॉर्नर है, ये जो एंड है, यहां से रे नीचे आ सकता है, और ये जो पॉइंट है यहां से रे नीचे आ सकता है। ऑल रेज आर पैरेलल। तो ये जो पोर्शन है जिसके ऊपर रेज आने वाले हैं, उसका इमेज है, वो इमेज मुझे यहाँ पे नीचे मिलेगी। बाकी सभी जगह पर आपके रेज आने वाले हैं, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में सिर्फ इतना ही पोर्शन है जिसकी इमेज नीचे बनेगी। तो हमने क्या किया, सिर्फ प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ की, सिर्फ प्रोजेक्शन लाइंस उस एंड पॉइंट से ड्रॉ किए जो पैरेलल टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस प्लेन होती है, रेफरेंस लाइन। ओके, सेम वे अगर मैंने यहां से सब पैरेलल रेज सेंड किए तो क्या होगा, कुछ रेज इसके ऊपर आएंगे, लेकिन यहां से रेज आगे जाकर यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। तो ये जो हाइट होगी वो हाइट होगी इमेज ऑफ दिस लाइन, एंड सेम यहाँ पे जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी आपकी इमेज ऑफ दिस स्लैंट लाइन होगी। तो मुझे अगर इस लाइन का व्यू ड्रॉ करना है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इस प्रोजेक्ट जो एंड पॉइंट है वहां से प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करना है, पैरेलल टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन। सेम, पैरेलल टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन। ऐसे ही यहाँ पे आपको करना है। देखो आपने ऑलरेडी ये 2 पॉइंट के प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है, और इतना ही सरफेस विजिबल होने वाला है ना, इसके आउटसाइड में जाएगा क्या वो सरफेस? नो सर। नहीं ना, तो ये 2 लाइन के बीच में ही मेरा वो सरफेस बनने वाला है, ये वाला 20 वाला। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो स्लांट लाइन है, स्लांट लाइन दो स्लांट लाइन से, एक इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। लेकिन उसका जो वो जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी एंड उसका डायमेंशन रिड्यूस होगा। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, ये रेक्टेंगल है, उसका डायमेंशन चेंज होकर हम यहाँ पे, अब ये तो डायमेंशन चेंज होगा क्या, ये जो डायमेंशन है वो चेंज होने वाला है क्या? ऊपर से देखने के बाद नहीं होगा, तो ये तो इक्वल ही रहेगा। सेम अपोजिट साइड की लाइन यहाँ पे रहेगी, सिर्फ हमें क्या करना है, ये एक्सटेंड करना है बिटवीन दीज टू प्रोजेक्शन लाइन, ये 2 प्रोजेक्शन लाइन के बीच में एक्सटेंड करके ड्रॉ करना है उसका व्यू। ये हो गया आपका प्लेन जो ऊपर से दिख रहा है लेकिन रिडक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, साइड व्यू में भी हम साइमल्ट देखेंगे कि कैसे दिखाई देगा वो। ठीक है, अब रह गया कौन सा, थर्ड वाला प्लेन, वो सी शेप है। तो ये जो मुझे लाइन ड्रॉ करने है थर्ड की, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड हो रहा है, जो हमने 7 का ये वाला पॉइंट है। तो मुझे ये लाइन वहां से ड्रॉ करनी होगी, लेकिन ये लाइन 1 नंबर की भी है जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की है। कहाँ पे वो लाइन, ये वाली लाइन। तो उसके प्रोजेक्शन के बीच में ही मुझे टॉप व्यू में वो लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, विदाउट मेजरमेंट सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर दूंगा। ओके, सेम इस साइड से, एंड देन क्लोज दिस 2 लाइंस। तो ये देखो आपका सी शेप बन गया। चेक करो 6 के बॉटम में है क्या, टॉप व्यू में ये लाइन आपकी 6 होगी ना, 6 नंबर की है ना, तो 6 के बॉटम से ही स्टार्ट है, और 8 वाली ये लाइन जो यहाँ पे इसके बॉटम में एंड हो गया, वो ये हमारा सी शेप हो गया। तो सब खेल किसका है, प्रोजेक्शन लाइन का खेल है। एक बार आपने फ्रंट व्यू बना दिया, उसके प्रोजेक्शन ले लो, सब प्रोजेक्शन लाइन के बीच में हमें जो हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है, रिक्वायर्ड व्यू है, वो व्यू मिलने वाला है। ठीक है, आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपकी आइडिया जो है वो आइडिया क्लियर होती जाएगी। ऐसे आप कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन जब आप मतलब थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर है तो वो बाद में जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी। ओके, आई थिंक अभी 50% तो एटलीस्ट आपका क्लियरिटी हो गई होगी कि ये जो स्लैंट प्लेन है वो इसके बीच में दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला पॉइंट और ये स्लैंट लाइन के जो 2 लाइन पॉइंट्स है उसके बीच में आपका रेक्टेंगल बनेगा जो हम साइड व्यू से देखेंगे वो। ओके, तो यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन,
सर शीट को थोड़ा जूम आउट करो एक ना। मिनट, एक मिनट। हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन। अब इसमें सर्कल नहीं है तो सेंटर लाइन का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सेंटर लाइन नहीं दिखानी है। अब देखो हमें पहले पॉइंट्स मार्क करना है, 4 पॉइंट्स। तो ये सबसे ऊपर वाली लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन ऑफ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू की सबसे ऊपर वाली लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन, ये चारों लाइन के 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको समझ में आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये 4 पॉइंट्स मेरे एरिया डिफाइन कर रहे हैं फॉर द साइड व्यू। तो अब देखो साइड व्यू में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन से प्लेन्स है, और वो प्लेन वहां पे ऑलमोस्ट जनरेट हुए, ऑलमोस्ट वो प्लेन आपके जनरेट हुए, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको डार्क बनाना है। तो 2 नंबर का प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे रेक्टेंगल उसका बन चुका है ऑलरेडी। यस सर। यस, ये 2 नंबर का प्लेन 1 नंबर के इस लाइन को अटैच्ड है, ओके, एंड 3rd नंबर के इस लाइन को अटैच्ड है। तो ये 2 लाइन का रेफरेंस आपको देखना है। ये लाइन कहाँ पे है, ये वाली, इसकी ये 2 प्रोजेक्शन लाइंस है। और 3rd वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, इसकी ये 2 प्रोजेक्शन लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल होगा प्लेन नंबर 2 का रेक्टेंगल। अब आप देखो 3 नंबर का रेक्टेंगल, 8 नंबर का रेक्टेंगल, और जो स्लांट का रेक्टेंगल है 4 नंबर, वो भी रेक्टेंगल ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो देखो, वैसे ही देख, अब यहाँ से देख रहे हो तो देखो ये 8 6 के बीच में 4 आने वाला है, वो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखाई दे रहे तीनों रेक्टेंगल्स। 6 नंबर का देखो यहाँ पे बन गया, 8 नंबर का सिमेट्रिक यहाँ पे 8 है, और बीच में जो होगा देखो आप इसकी प्रोजेक्शन लाइंस, इस प्रोजेक्शन लाइन के बीच में वो 4 नंबर का रेक्टेंगल है, वो यहाँ पे बन जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको डार्क लाइन से ड्रॉ करना है, सेपरेट करना है। ये हो गया आपका साइड व्यू कंप्लीट। देखो सब प्लेन्स इसमें कवर हो चुके हैं। अगर वो भी डिफिकल्ट आ रहा है तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये 6 नंबर का प्लेन मुझे साइड व्यू में ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू के कौन सी लाइन को है, ये वाली लाइन कहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, ये 2 लाइंस। और टॉप व्यू की कौन सी लाइन को है, यहाँ पे ये वाली लाइन है 7 की, ये 2 लाइन। इस 2 लाइन को कहाँ पे हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा और ऊपर वाली लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। तो ये मेरा प्लेन बनेगा 6 नंबर का प्लेन। ऐसे आप कर सकते हैं। Any doubt? सर वो स्लैंट प्लेन के लिए एक बार बताइए ना, साइड व्यू में कैसे लिया। साइड व्यू में देखो हमने यहाँ पे देखा था ना, इस साइड व्यू में ड्रॉ करना है तो इसके जो 2 एंड पॉइंट्स है उसमें से हमें प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करना है पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन। तो ये जो 2 पॉइंट्स है इसमें से मैंने ये प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ किया, तो ठीक है, मतलब ये और ये प्रोजेक्शन लाइन। अब टॉप व्यू में मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे। तो ये जो स्लांट सरफेस है वो टॉप व्यू के कौन सी लाइन को अटैच्ड है, 7 की ये लाइन जो है इसको, मतलब ये वाली लाइन। तो इस लाइन के प्रोजेक्शन देखो, इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और ऊपर वाली लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये मेरा जो पोर्शन रहेगा वो प्लेन नंबर 4 होगा।
4 के साइड में 6 और दूसरे साइड में 8 और नीचे 2। रोल नंबर 22 है क्या? ओके, तो इसमें किसी को डाउट? अगर डाउट नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम दूंगा, वो प्रॉब्लम आज आप प्रैक्टिस करो, ट्राई करके देखो। ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्स डायरेक्शन में आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। एक्स डायरेक्शन में फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, वाई डायरेक्शन में साइड व्यू ड्रॉ करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप सॉल्व करके देखो। चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो। बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रंट से कैसे दिखाई देगा तो उसके प्लेन्स कैसे ड्रॉ करना है, साइड से कैसे दिखाई देगा तो उसके प्लेन कैसे ड्रॉ करना है। ये अगर आपने ट्राई किया तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे हमें डाउट्स आ रहे हैं। ओके, सब लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये और ये जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क का ही क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। अगर आपको ये 8 मार्क फिक्स करना है तो प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम 49 मार्क्स का टॉपर था, लास्ट टाइम मतलब लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट में से। तो देखो 49 50 मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आपने परफेक्ट किया है तो, विदाउट एनी मिस्टेक। और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस होगी तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में एंड विद इन अ गिवन टाइम। तो सब लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने जो शीट 1 के मार्क्स अपलोड किए हैं ना, तो उसमें कुछ करेक्शन है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने एक दूसरी शीट वहाँ पे साइड में मतलब करेक्शन करके एक सेव की है ना शीट। नहीं सर, मेरे इसमें नहीं है। नहीं सर। तो प्रेजेंटेशन जो अगर 2-3 मार्क्स अगर डिडक्ट हो गए अप टू 5 मार्क्स तो प्रेजेंटेशन के वो मार्क्स डिडक्ट हो गए। करेक्शन कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन प्रेजेंटेशन लेटरिंग या डायमेंशनिंग सिस्टम उसमें स्मॉल मिस्टेक्स है, उसके मार्क्स कर रहे। एंड अगर 35 के नीचे है तो वहाँ पे मैंने आपको करेक्शन करके सबमिट किया है। ओके ओके सर। तो प्रेजेंटेशन नेक्स्ट टाइम से बेटर रहेगा, ये कोशिश करो। और सेकंड शीट में क्वेश्चंस नहीं लिखना है जी सर। सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखो और सॉल्यूशन। और सर वो कर्व की जो हेडिंग आएगी वो भी वो 4 mm का? हाँ 4 mm का।
और सर गिवन डेटा कैलकुलेशन गिवन डेटा एंड कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। आई थिंक जो सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा कि कौन सा कोर आएगा कौन सा नहीं आएगा, या डाउट आ रहा है इसमें? नहीं सर वो हो गया, सर हो गए। वो समझ आ रहा है। क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, उसी टाइप के सर वो क्वेश्चन एग्जाम में सर रहेंगे। given और डायमेंशंस के लिए भी 4 mm यूज करना है कि रैंडम लिख सकते हैं इसको डायमेंशंस? नहीं, डायमेंशन डायरेक्ट नंबर लिखना है आपको, जैसे होगा वैसे लिखो। ओके सर। सर गिवन लेकिन- वगैरह के लिए पूरा कैपिटल वैसे ही लिखना है, नहीं, डायमेंशन गिवन आप जैसे नोटबुक पर लिखते हो स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स वैसे ही लिखो नॉर्मल राइटिंग में। उसके लिए कुछ लेटरिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है लेटरिंग की। सिर्फ लेटरिंग कहाँ पे आना चाहिए, आपकी नेम प्लेट, और अगर वहाँ पे नेम द कर्व बोला है तो कर्व को नेम देना रिक्वायर्ड है, क्योंकि 1 मार्क उसके लिए होता है। अगर क्वेश्चन में नेम द कर्व है तो कर्व का नाम लिखना कंपलसरी है, उसके लिए 1 मार्क है, और वो 4 mm में होना चाहिए। हाँ सर वो कर्व का जो नाम लिखना है वो बॉटम में ही चाहिए कि कहीं पे भी नहीं, लिखा? कहीं पे भी लिखो, लेकिन वो 4 mm में होना चाहिए। ओके सर। Okay, so thank you very much. Today we will stop. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.